Also, I'm here at the Mahindra launch, the Mahindra event, which takes place every August 15th, and we've got the B6 Sportec version. This, of course, is the third variant or the plus 3 variant, which they call. This one comes with a 70 kilowatt hour and a 79 kilowatt hour battery pack. Prices, of course, are above 24 lakh rupees, and they've got a lot of features. And they've also got this car now on the BAS battery as an option system, but that's for the low versions, not for the top of the line version. Now, what is different on this car? Exterior wise, it looks pretty much the same. So you get the same chunky wheels on the outside. Aerodynamics look great, and if you look at the car from the outside, it gets the same design elements and that swooping line at the back. It looks very different from everything else out on the road. But the biggest changes have been reserved for the interiors, and there's a lot of things. Three screens have now come in the cabin, and of course, the middle partition between the driver and the occupant has also been removed. So it's got a completely smooth surface and no distractions for people sitting inside. But we'll get inside. Tan interiors all across the range, and of course, two battery packs as before. Lots of tech, lots of features, and a whole lot more on the interiors. So we'll jump inside and show you the interiors now. But before that, let's play some music for you and show you some visuals of the car on the outside as well as the interiors. Before moving forward, let's talk about Boodmo, the one-stop solution for all your car spare part needs. Available on both iOS and Android devices, it now offers you an AI product recognition feature where you just click a photo of the spare part required, and then further you can go ahead and click a photo of your car's number plate to locate the exact make and model of the car spare part that you're actually looking for. The app UI is extremely smooth, and this makes your car spare part ordering journey extremely easy and seamless. Go ahead and download the Boodmo app on both iOS and Android devices. Now, one of the biggest highlights of this car, of course, is the rear design. You get this sloping roofline, but the biggest change on the top of the line version is the fact that over here on this LED display, you can type stuff and you can write stuff. So if you're sitting inside the car, you want to tell people to drive safe, you can write that over here. If you want to tell people to drive slowly, you can write that over here. And you can do a lot of other stuff. Maybe you can write your telephone number in case you've got somebody you're interested in, and that person will easily note it down. So that's something which is naughty, but something that you can do. And that's a unique feature on this car. Of course, you also get these fancy LED lights all across. And that's something which makes the B6 one of the most standout cars on the road. Now let's jump inside and show you the interior as well. Well, then I'm sitting inside the cabin of this car, and the big difference, of course, is this. Now you get three screens on the top of the line version, and this one has its own password. So in case your kid is sitting here, you don't want the kids to watch a movie or play some games. You can, of course, play a lot of games. There's also Google now installed, pre-installed inside this car, so you can directly do a lot of voice commands. Like you can say, "Hi, Maya," that's what they call it. Close the sunroof or open the sunroof or turn the temperature down and stuff like that. And that middle partition is gone now. A lot of people did not like this car because of that middle partition. It's all flat, and I have to say that the quality of this car is quite good. Now it's a 25 lakh rupee car, this top of the line version, and all the materials, all the instrumentation, all the perception levels inside the quality in terms of the quality are quite good. You of course get multiple functions over. You need to press this button, and you can touch and change the controls for various host of features on this car. And of course, you also get different driving modes. You can change the exterior lighting, and of course the interior lighting as well. Really looks very fancy. The future is right here now. It's not really something which is in the distant, some years. It is right here and right now. The seats themselves are very good in terms of comfort. Your roll support is good, and generally, it's a very likable place to be. All the materials, all the silhouette, everything really does feel very fancy and very good to hold. Double telephone charging points, wireless chargers, two of them over here, two USB Type C's over here, and of course a glove box which opens up nicely and softly, and it's quite a deep glove box as well. But this really is a fancy feature. Mahindra says that a lot of people wanted a third screen on this car because the other cars get it, so they used to come inside, like the interiors, but always felt that a third screen was needed, and they've given it to you on this top of the line version. This brown is all new, tan interior is all new because this is the big highlight of the car, and of course driver side is adjustable for electric operations, but this one is
ओनली मैनुअल एट द मोमेंट। आ चुका हूँ पीछे अब B6 कैबिन के अंदर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा खासा है, हेडरूम भी काफी ठीक ठाक है, बहुत धांसू तो नहीं है बट ठीक ठाक है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, बट हेडरूम इज क्वाइट डिसेंट, लेग रूम इज क्वाइट गुड जनरली, एंड इट्स अ फ्लैट फ्लोर बोर्ड, जो बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पे फ्लोर बोर्ड पे यहाँ पे पैर फैला सकता है जो भी तीसरा इंसान बीच में बैठेगा, और आराम से आप आमने ऊपर कर सकते हैं। सीट कंफर्ट अपने आप में अच्छा है, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। अगर आप शोरूम में जाएंगे तो कुशनिंग जरूर चेक करें, नीरो हेडरूम के अलावा कुशनिंग चेक करनी जरूरी होती है, क्योंकि आप लंबे सफर पर अगर निकलते हैं गाड़ी के, क्योंकि रेंज इसकी अच्छी है, 70 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो क्या कुशनिंग आपको इतनी देर तक आराम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ आराम से बैठिए द बॉस। बीच में इन्होंने यहाँ पे थोड़े से लगा रखे ताकि अपने आईपैड या फिर मोबाइल फोन को यहाँ पे आप हुकअप कर सके, या फिर कोई स्क्रीन को हुकअप कर सके और फिर उसे देख सकते हैं लंबे सफर के ऊपर। टाइप सी की चार्जिंग पॉइंट दे रखी है, एंड जस्ट इन जनरल बिकॉज ऑफ दिस न्यू टैन कलर, दिस ब्राउन कलर, the overall vibe of the cabin is generally quite good. Big windows, huge screen, which means that you feel quite nice and posh. और अगर आपको बोरियत हो रही है तो आप ऐसे बीच में देख सकते हैं, और बीच में देखकर आप देख सकते हैं कि तीनों स्क्रीन पर क्या चल रहा है, क्या बैटरी के अंदर अभी भी एनर्जी है, क्या आपका बेटा या बेटी जो आगे बैठा है सही चीज़ देख रहा है, कुछ गलत तो नहीं देख रहा, आपको ऐसे देख के पता चल जाएगा। और आराम से आप उस फैंसी ट्रिपल स्क्रीन का मजा ले सकते हैं पीछे, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्राइट स्क्रीन, लुक्स वेरी गुड एंड लुक्स वेरी शार्प, एंड दैट्स समथिंग व्हिच यू रियली एंजॉय फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द B60। अब इसको हम चलाएंगे और चला के बताएंगे चलाने में गाड़ी कैसी है, और उसके बाद आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेल, तो मैं चला रहा हूँ BE6, और ये अपडेटेड वर्जन है गाड़ी का जो मैं चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में डिवाइडर वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने फोन ऐसा चीज़ आराम से लिए, जो पहले डिवाइड करता था पैसेंजर को और ड्राइवर को सामने हटा दिया। अगर 3 स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और अभी हमने बंद कर रखा है, उसके ऊपर कुछ चला नहीं रखा है, इस वाले पे अपने मैप लगा रखे हैं, वायरलेस कनेक्शन है एप्पल का एप्पल का, एंड ऑटो भी वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। हम 100 की स्पीड पर या अभी 110 पर आ गए की स्पीड पर इस वक्त हम मुंबई से बाहर निकल रहे हैं, हाईवे पकड़ लिया हमने, अब जा रहे हैं करजत की तरफ। और एक बात में तो आपको बोलनी पड़ेगी, वो ये है कि जो इस गाड़ी की स्टेबिलिटी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही एक्सेलेंट स्टेबिलिटी है। एक और चीज जो बहुत अच्छी है इस गाड़ी की मेरे को जो बहुत अच्छी लगी, वो ये कि टॉर्क इज इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल, एकदम जैसे आपने पंजा दबाएगी, जैसे अपना पैर रखेंगे एक्सीलेटर पेडल पर, टॉर्क आपको विद इन मिली सेकंड्स कह लीजिए मिल जाता है। ऐसा नहीं कोई पेट्रोल या डीजल इंजन जहाँ पर टर्बो लैग आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अब भी कोई नहीं वेट करना पड़ेगा 1500 RPM के ऊपर। तो ये पहले से भी हर इलेक्ट्रिक कार की खासियत है, B6 की भी खासियत थी, और अब भी ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत ही खास चीज़ है। अगर बात करें इस गाड़ी को चलाने की, तो स्टीयरिंग व्हील हल्का है, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स वगैरह आते हैं तो आप उनको चूज कर सकते हैं, और बड़ी ही इंजॉयबल कार है ड्राइविंग करने के लिए। नाउ इट्स अ हाई साइड SUV, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी ड्राइवर फोकस कार है, बट स्टिल इट इज एन enjoyable car to drive. It's a car which you will really enjoy driving and be very hassle free in the city, because as I said, controls are very light, the steering wheel is very light, braking action और accelerator action जो है वो भी काफी हल्का है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको विजिबिलिटी के बारे में बोले तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मिल जाता है, बड़े बड़े शीशे मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको इसके अंदर डिफरेंट रीच एंड मोड्स मिल जाते हैं। इस वक्त हम L1 पर चला रहे हैं, यानी कि जब हम पंजाब में हटाएंगे एक्सीलरेटर पेडल से तो हल्की हल्की ये ब्रेकिंग लेने लगेगी और रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 पेडल टेक्नोलॉजी पर भी आप इसको ऑलमोस्ट चला सकते हैं। अगर आप इसको डालें तो बिल्कुल सबसे मैक्स रीजन मोड पर, और ऐसे पैर हटाते हैं तो ब्रेकिंग लेने लगती है और अपने आप बैटरी थोड़ी चार्ज होती है। 2 बारी आप इसमें SOS फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक बारी जब बैटरी बिल्कुल 0 पे है तो आप SOS दबाएंगे तो 13 किलोमीटर की रेंज आपको देती है एक्स्ट्रा, यानी कि आप बिल्कुल ही जब लगता है कि बैटरी खत्म हो गई है, मेरे को चार्जिंग पॉइंट कहीं नहीं मिल रहा है, चार्जर से मैं ढूंढ रहा हूँ तो खराब है वो, तो आपको 13 किलोमीटर देती है, विच मीन्स कि आप घर पहुंच सकते हैं। अगर आप धौलाकुआं में फंसे हुए हैं और आपको जाना साउथ ईस्ट की तरफ या आपको आना पंजाबी बाग की तरफ, तो 13 किलोमीटर करीब डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। और उसके ऊपर अगर आपको तब भी 13 किलोमीटर पूरे नहीं होते, आप थोड़ा रह जाते 4-5 किलोमीटर से अपने घर के रास्ते, तो वहां पर आप रिवाइवल SOS का एक बटन है, उसको यूज करके अनदर 11 किलोमीटर निकाल सकते हैं। जी हाँ, 11 किलोमीटर और निकाल सकते हैं, लेकिन रिवाइवल SOS जो है वो आप सिर्फ पूरी लाइफ में गाड़ी की 5 बार यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस में यूज करने वाली एक टेक्नोलॉजी यूज करने वाला एक सिस्टम है। So that is something which you have to keep in mind, that you should not use it very often. But हाँ, जो रिवाइवल वाला मोड है वो आप यूज कर सकते हैं। खत्म हो जाए बैटरी तो रिवाइवल SOS सिर्फ 5 बार यूज कर सकते हैं। महिंद्रा कह रहा है हो सकता है उससे ज्यादा कर सके, लेकिन बैटरी को वो बचाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 5 बारी का ही बता रहे हैं। बात करें अगर इस गाड़ी की एक बार फिर से, in terms of driving pleasure, absolutely no noise except a little bit of tire noise which is coming in from this patch of the road which has just been laid out. तो आई थिंक ये रोड की वजह से हो रहा है, टायर्स की वजह से नहीं हो रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही, बाहर से इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी है अंदर की, और जस्ट इन जनरल the overall driving feedback that I'm getting is that the steering wheel is very positive. It's a very nice and fluid steering wheel, बहुत ही fluid है, बहुत अच्छा है।
और साथ ही साथ जो सस्पेंशन सेटअप है, राइड क्वालिटी आपको इंस्पायर करेगी, कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन साथ ही साथ जो इसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, जो गाड़ी चिपक कर चल रही है, वो बहुत अच्छा है। तो हाईवे पर भी जैसे मैंने बोला 100 की स्पीड पर मैं चल रहा हूँ, 100-150 पे चल रहे हैं हम लोग भी इसमें। इट्स रियली परफॉर्मिंग वेल एंड आई एम एंजॉयिंग द ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इट्स अ फन कार टू ड्राइव बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट टॉर्क and just the overall power, the overall, the fact that it's an EV vehicle gives you total peace of mind because बहुत smooth drive है, इसके और instant torque available है। तो मैं अगर पंजा दबाऊँ और ऐसे बैठूँ तो within seconds ये जैसे हम कहते हैं इनका एक्सेलरेशन इन आइस बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है इन डिपार्टमेंट, और बहुत मजा आएगा आपको चलाते वक्त। और क्या बताएं आपको, विजिबिलिटी काफी अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, स्टीयरिंग व्हील हल्का है, और क्योंकि महिंद्रा ईवीज में पिछले 4-5 साल से गाड़ियां बेच रहा है, ऑफकोर्स ये BEV जो है पिछले 1.5 साल से बेच रहा है, और उससे पहले महिंद्रा 400 भी आती थी, जो कि XUV 400 आती थी, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। सो दे वन ऑफ द मास्टर्स नाउ, वन ऑफ द लीडर्स व्हेन इट कम्स टू EV टेक, एंड यू कैन इजीली एंड मोर रिलायबली बाय द कार्स, क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में एंड इन टर्म्स ऑफ जस्ट द ओवरऑल टेक्नोलॉजी दैट दे हैव टू ऑफर, इनका अब बन चुका है, मुकाम बन चुका है, तो आपको टेंशन या कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस डिपार्टमेंट में। बाकी बातें आपके साथ हम करेंगे जब हम पहाड़ों में पहुंच जाएंगे, पहाड़ का भी रास्ता बीच में आने वाला है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि पहाड़ी रास्ते में गाड़ी परफॉर्मेंस कैसी देती है, और वहाँ पे इसकी हैंडलिंग वगैरह कैसी है। हालांकि ऊंची ऐसी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है और स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक अच्छा है, तो वहाँ पर भी मजा आने वाला है। पहाड़ों पर चल के बात करेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।